Good morning, students. Welcome to your English online lecture of Standard First. Myself, Miss Pooja, and today you are going to learn subject English. So, students, I request you all to open your English Bal Bharti textbook. So students, let us begin with our subject English. Students, have you all opened your English Bal Bharti textbook? Okay. So students, those who have not purchased the textbook of your English Bal Bharti can purchase the textbook from outside shop. Okay students, you will get this textbook from outside. You all need to purchase this textbook from outside shop. Okay, and those students who are having the textbook, just open your textbook and carry a pencil with you. Today we are going to learn a new lesson from our English Bal Bharti textbook. बच्चों, आज हमारे न्यू लेसन का हम स्टार्ट करने वाले हैं. आज हम पढ़ेंगे यूनिट 1 में लेसन नंबर 3. ओके, तो सभी स्टूडेंट्स अपने टेक्स्ट बुक लेसन नंबर 3 को ओपन करेंगे. ऑल ऑफ यू जस्ट बी रेडी विथ योर लेसन नंबर 3, दैट इज एक्शन टाइम. स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू स्टडी lesson number 3, action time, from our English Bal Bharti textbook. Okay, so students, are you all ready? Okay, you are going to enjoy your today's lecture. As this lecture I am going to explain you many actions. Okay students, so you all need to do the actions at your home. So students, I am going to tell you the actions and you are going to do the actions at your home. Okay, so same as we have studied our first poem, a happy song. In that poem also we have learnt many actions. Our poem second was nature, that also we have completed. Now today we are going to study लेसन नंबर 3, एक्शन टाइम. बच्चों, आज का हमारा लेसन है एक्शन टाइम. ये लेसन में हम सारे एक्शंस लर्न करने वाले हैं. तो मैं आपको एक्शंस के नेम बताऊंगी और समझाऊंगी. उसी तरीके से आपको सारे एक्शंस आपके घर पर करने हैं. ओके स्टूडेंट्स, तो आप एक्शन टाइम ये लेसन काफ़ी एंजॉय करोगे, क्योंकि ये लेसन में आपका एक्सरसाइज और फिज़िकली एक्सरसाइज भी होगा. आप इसे एंजॉय भी करोगे और ये एक्टिविटी है जो कि आपको क्या करेगी, फिट एंड स्ट्रॉन्ग रखेगी. तो ये लेसन में हम एक्शन टाइम में एक्शन सीखेंगे. ओके students, before starting the chapter, the lesson action time, what is the meaning of action? बच्चों, ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि एक्शन का मतलब क्या है. क्या आप लोग मुझे बता सकते हो एक्शन किसे कहते हैं? यस, ओके, वेरी गुड. नाउ लेट मी एक्सप्लेन यू the meaning of action in very simple term. okay बच्चों, actions यानी जो चीज़ हम करते हैं, the movements of the body which we perform, which we do, is called as action. हम जो बॉडी के मूवमेंट्स करते हैं उसे कहते हैं एक्शन. यानी आप अपने हैंड्स को अप करते हो, डाउन करते हो, आप खाना खाने के लिए ईट करते हो, yes or no, you drink water, these all are actions. You stand up, you sit down, you raise your hands, you jump, you dance, these all are called as actions.
बच्चों ये सारे चीज़ों को क्या कहते हैं? एक्शंस। जो भी हम अपने बॉडी से मूवमेंट्स करते हैं, यानी हम हाथों का यूज़ करते हैं, पैरों का यूज़ करते हैं, जैसे जंप करते हैं, चलते हैं, राइटिंग करते हैं, फूड ईट करते हैं, खाना खाते हैं, तो ये सारे हमारे एक्शंस है। ओके, तो आज का हमारा लेसन का नाम है एक्शन टाइम। ओके, तो अब हम हमारे लेसन की ओर शुरुआत करेंगे। एक्शन टाइम। लेसन नंबर 3, एक्शन टाइम। पेज नंबर 3, लेसन नंबर 3, एक्शन टाइम। ओके, नाउ so students just open your textbook पेज नंबर 3। बच्चों आपको आपके टेक्स्ट बुक पेज नंबर 3 ओपन करना है। आप देख सकते हो हमारा लेसन का नाम है लेसन नंबर 3, एक्शन टाइम। You can see on page number 3 the action time is divided into 2 parts. The first part is listen and act, and the second part is also listen and act. Listen means you have to listen to the teacher, what I am going to tell you, the actions which I am going to teach you. And act means you have to do the actions at your home. You have to perform that actions, you have to do that actions. Listen का मतलब है सुनो, act का मतलब है करो, यानी आपको सुन के ये सारे एक्शंस को आपके घर पर करना है। ओके बच्चों, तो अब हम हमारा लेसन स्टार्ट करेंगे। लिसन एंड एक्ट। स्टैंड अप। स्टैंड अप। स्टैंड अप यानी बच्चों खड़े हो जाओ। स्टैंड अप का मतलब है, स्टैंड का मतलब है खड़े होना। स्टैंड अप यानी खड़े हो जाओ। तो सभी बच्चों इस वीडियो को देखते देखते एक्शंस करेंगे। वेरी गुड। सिट डाउन, आपको अभी बैठ जाना है। सिट डाउन यानी बैठना। सिट का मतलब बैठना। ओके, सभी बच्चे कर रहे हैं? यस। ओके पेरेंट्स, आपको ये याद रखना है कि ये एक्शन टाइम हमारा एक्शन पोयम है, एक्शन चैप्टर है। तो आप सभी बच्चों को मोबाइल आप स्टैंड पर खड़ा करके आपको बच्चों को ये एक्शंस कराने हैं ताकि उनको ये एक्शंस समझ में आए। आई रिक्वेस्ट ऑल द पेरेंट्स टू कीप अ मोबाइल ऑन अ स्टैंड and to do the actions, to help the students to perform the actions that I am going to teach you, okay, so that they will understand. बच्चों आपको ये सारे एक्शंस मेरे साथ ही जैसे मैं आपको बता रही हूँ उस तरीके से आपको सारे एक्शंस को करने हैं। ओके, स्टैंड अप। स्टैंड अप यानी खड़े होना। सिट डाउन यानी बैठ जाना। रेज योर हैंड्स। रेज योर हैंड्स का मतलब है आपको आपके दोनों हाथों को ऊपर उठाना है। आप देख सकते हो फर्स्ट पिक्चर में वो बॉय क्या कर रहा है, अपने दोनों हाथों को उसने क्या किया है, ऊपर उठाया है। रेज का मतलब है ऊपर उठाना। रेज योर हैंड्स। सभी बच्चे कर रहे हैं? यस, वेरी गुड। हैंड्स डाउन, अब अपने हाथों को नीचे करो। हैंड्स अप, वापस अपने हाथों को ऊपर करो। ओके, हैंड्स डाउन, वेरी गुड। अब अपने हाथों को नीचे करो। स्टैंड अप, खड़े हो जाओ। स्टैंड अप मतलब खड़े हो जाना। टर्न लेफ्ट, अपने लेफ्ट की ओर आपको टर्न करना है, लेफ्ट। अब पेरेंट्स आप अपने बच्चों को हेल्प करो कि अपने लेफ्ट बच्चे जहाँ बैठे हैं, जो डायरेक्शन में खड़े हैं उसी डायरेक्शन में उनको लेफ्ट की ओर क्या करना है, टर्न करना है। ओके, टर्न लेफ्ट। टर्न राइट, अब उनको राइट की ओर क्या करना है, टर्न करना है। ओके, वेरी गुड। रेज योर लेफ्ट हैंड एंड शेक इट, अब आपको अपना लेफ्ट हैंड उठाना है
और क्या करना है, शेक इट। शेक यानी आपको अपना लेफ्ट हाथ ऊपर उठा के शेक करना है, अपने हाथों को हिलाना है। ओके, क्या सभी बच्चे कर रहे हैं? आई होप दैट ऑल द स्टूडेंट्स आर डूइंग द एक्शंस। यस, वेरी गुड। रेज योर राइट हैंड एंड शेक इट। अभी आपको अपना राइट हैंड उठाना है और शेक करना है। हैंड्स डाउन। अब आपको अपने हाथों को नीचे करना है, हैंड्स डाउन। जंप। अब आपको कौन सा एक्शन करना है, आपका फेवरेट एक्शन, दिस एक्शन ऑल ऑफ यू लव टू डू, दैट इज जंप। ऑल ऑफ यू जंप स्टूडेंट्स। यस, सभी बच्चे जंप करेंगे। स्टैंड ऑन द लेफ्ट फुट। अब अपने लेफ्ट पैर को, लेफ्ट फुट को, फुट यानी एड़ी, अपने लेफ्ट फुट को आपको ऊपर उठाना है। आप इस पिक्चर में देख सकते हो गर्ल ने किस तरीके से अपने लेफ्ट फुट को ऊपर उठाया है। यस और नो? यस। स्टैंड ऑन द लेफ्ट फुट। आपको खड़े होके आपका लेफ्ट फुट क्या करना है, ऊपर उठाना है। हॉप। हॉप मतलब जंप करना। ओके, हॉप का मतलब होता है जंप करना। स्टॉप। स्टॉप यानी रुक जाओ, अब आपको स्टॉप हो जाना है। स्टैंड ऑन द राइट फुट। अब आपको खड़े होकर राइट फुट यानी आपका जो राइट लेग है उसकी आपको एड़ी उठानी है। आप पिक्चर में देख सकते हो पिंक कलर के गर्ल ने यहाँ पे लेफ्ट फुट भी उठाया है, उसी तरीके से राइट फुट भी उठाया है। हॉप, HOP, हॉप। हॉप मतलब जंप करना, तो सभी बच्चे हॉप करेंगे। स्टॉप। नाउ ऑल ऑफ यू स्टॉप जंपिंग। स्टॉप यानी रुक जाना है। ओके, सो दिस इज द एक्शन टाइम पार्ट 1। ये था हमारा पोएम का पार्ट 1, ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। अब हम देखेंगे सेकेंड पार्ट, लिसन एंड एक्ट। सुनो और करो। आर्या सेज स्टैंड अप। आर्या बोल रही है स्टैंड अप। अब आपको जिस तरीके से एक्शंस समझ में आ रहे हैं उसी तरीके से आपको एक्शंस करने हैं। मैं आपको बोलूँगी आर्या सेज स्टैंड अप, तो सभी बच्चे खड़े हो जाएंगे, वो बॉय हो या गर्ल हो, सबको क्या करना है, स्टैंड अप। मतलब एक्शन का नाम सुनते ही आपको स्टैंड अप यानी खड़े हो जाना है। आर्या सेज सिट डाउन। आपको क्या करना है, बैठ जाना है, सिट डाउन। आर्या सेज रेज योर राइट हैंड। आर्या कहती है अपना राइट हैंड उठाओ, अपने राइट हैंड को ऊपर उठाओ स्टूडेंट्स। वेरी गुड। आर्या सेज रेज योर लेफ्ट हैंड। आर्या कहती है अपने लेफ्ट हैंड को ऊपर उठाओ। आर्या सेज वेव योर हैंड्स। आर्या कहती है अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाकर वेव करो। वेव मतलब अपने हाथों को हिलाओ। आर्या सेज हैंड्स डाउन। आर्या कहती है हाथ नीचे रखो, हैंड्स डाउन। आर्या सेज क्लोज योर आइज। आर्या कहती है अपनी आइज क्लोज करो यानी बंद करो। आर्या सेज ओपन योर आइज। आर्या कहती है अपने आइज को ओपन करो। आर्या सेज स्टैंड अप। आर्या कहती है स्टैंड अप, खड़े हो जाओ। आर्या सेज टर्न लेफ्ट। अब आर्या कहती है टर्न लेफ्ट, अपने लेफ्ट की ओर आपको मुड़ना है, टर्न यानी मुड़ना है। टर्न। आर्या सेज टर्न राइट। आर्या क्या कहती है, अपने राइट की ओर टर्न करो। आर्या सेज टर्न अराउंड। अब आर्या कहती है टर्न अराउंड यानी पूरा एक राउंड आपको घूमना है। आर्या सेज जंप ऑन द स्पॉट। आप जहाँ पर खड़े हो वही प्लेस पे आपको जंप करना है यानी कूदना है। जहाँ पर आप खड़े हो उसी जगह पे आपको कूदना है, जंप करना है। आर्या सेज जंप हाई। अब आर्या कह रही है आपको ज़ोर से हाई जंप यानी लंबा जंप, हाई जंप आपको करना है।
आर्या सेज टच योर टोस। आर्या कह रही है अपने पैरों के अंगूठे को आपको टच करना है, पकड़ना है। आर्या सेज स्टैंड स्ट्रेट। अब आर्या कह रही है सीधे खड़े हो, स्टैंड स्ट्रेट यानी स्ट्रेट खड़े रहना है। आर्या सेज रन ऑन द स्पॉट, स्टॉप। आर्या कह रही है जगह पर ही आपको रन करना है यानी दौड़ना है। स्पॉट यानी आप जो जगह पे खड़े हो उसी जगह पे आपको क्या करना है, रन करना है। ओके। स्टॉप, स्टॉप यानी रुक जाना है। आर्या सेज टच योर नोज। आर्या कहती है अपने नोज को टच करो। ओके। तो इसी तरीके से हमारी एक्टिविटी सेकेंड यहाँ पे कंप्लीट होती है। सो स्टूडेंट्स, दिस लेसन एक्शन टाइम was a physical activity type lesson. Here we have learnt all the instruction, all the actions. So this was not possible for us as we are conducting the online lecture. As if we have learned this lesson action time in our class, you have enjoyed a lot. As face to face, you all will enjoy this doing the actions, but in the online lecture it is not possible for me to show you all the actions. बच्चों, ये जो लेसन है हमारा एक्शन टाइम, इस लेसन में हमने सारे एक्शंस देखे। तो जिस तरीके से मैंने सारे आपको एक्शंस बताए, हमारे ऑनलाइन लेक्चर में ये आपको मुझे करके दिखा पाना मुश्किल था, इसीलिए मैंने आपको सारा समझाया ताकि आप ये सारे एक्शंस घर पे कर सको। ओके बच्चों? यस, वेरी गुड। सो हियर वी हैव कंप्लीटेड आवर लेसन एक्शन टाइम। So students, I hope that you all have understood our today's lesson number 3, action time. Now students, all of you just open your Navjeevan term book, your combined book number 1. Okay, so today we are going to complete the notes also from this lesson action time in our combined book. Okay students? So students, just open your Navjeevan term book, combined book number 1, and also carry a pencil with you. Okay, are you all ready with your combined book number 1? Okay, just remove your English part. In that, remove lesson number 3, action time. So students, just open your page number 4. Unit 1, lesson number 3, action time. Oral, question number 1, listen and act. Textbook page number 3. Already now we have completed. I have explained you the poem. You all have done the actions. Now it is the time for the class work. Okay. So just take a pencil and a scale in your hand for doing the matching. Question number 1, match the following. बच्चों, अब आपको यहाँ पर मैचिंग करना है। मैच द पेयर्स, मैच द फॉलोइंग। यहाँ पर आप देख सकते हो मैचिंग में आपको 2 कॉलम दिए गए हैं। कॉलम ए में कुछ सिंबल्स बताए गए हैं और कॉलम बी में उनके नेम्स लिखे हैं सिंबल्स के। तो पहला सिंबल है एरो, एरो, अप। आप देख सकते हो एरो कौन सा डायरेक्शन बता रहा है, अप डायरेक्शन, ऊपर की तरफ। तो आपको यूपी अप पर मैच करना है। आपको बी कॉलम में यू आर गोइंग टू मैच द D1. ओके, द फर्स्ट वन यू आर गोइंग टू मैच यूपी अप। सेकेंड एरो, सेकेंड सिंबल इज द डाउन एरो। दूसरा जो सिंबल है ए कॉलम में वो है डाउन एरो का। वो एरो नीचे की तरफ बता रहा है, डाउन। तो आपको मैच करना है DOWN, डाउन, ए वाला। फर्स्ट वन यू आर गोइंग टू मैच। ओके, द थर्ड symbol is the turn symbol. Okay, turn. So you are going to match
turn, turn, the last alphabet E1. Okay, the fourth symbol is the right symbol. वो right की तरफ क्या कर रहा है, arrow symbol show कर रहा है, RIGHT, right. Okay, yes, the second one, B, alphabet B, you are going to match. And the fifth one is left arrow. Okay, it is showing the left direction, left symbol, so you are going to match in the C alphabet. Okay, in the B column. Also you are going to write the answer down. First one is D, up, 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 so you are going to write alphabet D. बच्चों आपको फर्स्ट का आंसर आपको यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स लिखना है, तो फर्स्ट में यूपी अप का कौन सा अल्फ़ाबेट है, अल्फ़ाबेट डी. सेकेंड है डाउन, अल्फ़ाबेट ए, आपको लिखना है स्मॉल ए. थर्ड के आंसर में आपको लिखना है टर्न, वो है टर्न एरो, सो यू आर गोइंग टू राइट अल्फ़ाबेट ई, आपको लिखना है लेटर ई, स्मॉल ई. फोर्थ वन इज राइट, RIGHT, राइट, तो आपको लिखना है लेटर बी, अल्फ़ाबेट बी, स्मॉल बी. ओके, और फिफ्थ वन है यस, लेफ्ट एरो, तो आपको लिखना है लेटर सी, अल्फ़ाबेट सी. ओके, सो दिस वाज द मैच द फॉलोइंग. You are going to practice this match the pairs. This is important. This can come in the exam. So you are going to practice this, as you all have to learn it, the direction, the symbol. You all are going to remember this symbol, the up arrow, down arrow, turn arrow, left arrow and right arrow. बच्चों आपको ये सिम्बॉल्स जो है आपको याद रखने हैं कि इसे कहते हैं अप एरो, ये है डाउन, ये है टर्न एरो, ये है लेफ़्ट और ये है राइट एरो. आपको इसे पहचानने को आना चाहिए. ये एग्ज़ाम में भी मैच द फॉलोइंग में ये क्वेश्चन आपको आ सकता है. ओके, तो ये आपका इम्पॉर्टेंट है. नाउ कम टू पेज नंबर 5. पेज नंबर 5 इज़ द होमवर्क. Okay, read and write. Here is the copywriting. Read and write. Here are some dictation words from the lesson action time. So you are going to copy the words 3 times. You are going to write the same words 3 times. First is stand, STAND, stand. Second one is hands, HANDS, hands. Third one is left, LEFT, left. The next one is right, RIGHT, right. The next one is foot, FOOT, foot. The next one is shake, SHAKE, shake. The next one is up, UP, up. The next one is down, DOWN, down. Okay, so this you are going to write as I have shown you the homework. You are going to copy this 3 times. Okay, and here is the activity part. Look at the pictures and do the actions. तो बच्चों यहाँ पर आपको कुछ पिक्चर्स दी गई है, आपको उनको देखकर एक्शंस करना है. पहले पिक्चर में आप देख सकते हो क्या बॉय क्या कर रहा है, स्टैंड, और गर्ल सिट, स्टैंड सिट. इन द सेकेंड पिक्चर यू कैन सी द गर्ल इज रेजिंग द राइट हैंड एंड देन द लेफ्ट हैंड. एंड द थर्ड पिक्चर यू कैन सी yes, they are touching their hips. And the next action down you can see the boy is laughing by doing the action. Both the hands are up and he is laughing, and here the hands are down of the girl. Here you can see the boy, one boy has turned right, one boy has turned left. Okay, in the last picture you can see that the girl is jumping and the boy is touching the toes. Okay, so you are going to do this actions at your home. So students, here we have completed our
लेसन एक्शन टाइम. आई होप दैट यू ऑल हैव अंडरस्टूड. तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि सभी बच्चों को ये एक्शन टाइम, जो कि बहुत ही इजी हमारा लेसन था जिसमें सारे एक्शंस दिए गए थे, तो बच्चों आपको ये एक्शंस वापस से घर पे एक बार प्रैक्टिस करने हैं. ओके, आज का लेक्चर यहीं पे हम एंड करेंगे. स्टूडेंट्स, स्टे कनेक्टेड फॉर द नेक्स्ट इंग्लिश ऑनलाइन लेक्चर. टिल देन, स्टे होम, stay safe, and thank you for watching today's lecture. Have a nice day.